गुड इवनिंग, दिस इज़ अभिषेक गुप्ता एंड यू आर वाचिंग सक्सेसपीडिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ में, एंड दैट इज़ टिप्स टू स्टार्ट अ कॉन्वो। तो इन द सीरीज ऑफ वीडियो मेकिंग, इन द सीरीज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, as we have already covered what are the do's and what are the don'ts that for a better English speaking, for to learn a better fluent English in 30 days, 30 videos. Now we'll move forward for to how to start a conversation with a new guy, with someone whom we are meeting for the first time, because especially whenever we are meeting somebody new which is not very much familiar with us, so it's very much awkward, the things gets awkward. We are not able to understand that what we should talk to each other, or if it may be some one liner, two liners, and the conversation is over. So it is really a skill to start a conversation with a new guy. In the starting, many small talks can start a conversation, but what happens later on, after asking our well-being, after asking about our localities, our hobbies, the conversation is over and it is not going to a very good direction, very fruitful direction, very productive direction. So this is actually, starting a conversation is also a part of communication skills, and this is a skill that is learnable. We can all learn the skills how to start a better conversation. In the starting days, I do remember that when I used to meet some people which were new to me, it was way back in 2005 or 7 something, when I was not in Kanpur, I was way back at my hometown Korauli. I was not that frequent with the communication skills. I was not mastering the communication skills. It was not like I was not good in English at that time. It's actually, it is not related to the language, it's not related to the English. Starting a conversation is a communication skill, and you need to master it apart from English or Hindi. If you are good at Hindi, you can also start a conversation. So from today, what I have learned from those days, that if suppose at that time I missed many opportunities when I was very much excited to talk to a guy and was not able to talk because I was not very good at communication. I was not very much familiar with the tricks, with the tips, how to start a conversation. And in spite of being excited, I did lose the conversation. I was not able to meet them. So after working on various technologies, after working with other colleagues, I have developed these techniques, so which I would like to share with you guys, that how we can start a better conversation. ठीक है, तो there are 3 tips basically that we can use to start a conversation that is fruitful, that is productive. So the first one is, we all knows this, start with a compliment. We all are aware, ये हम सब जानते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट देके हम चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, बट देर आर डिफरेंट पीपल, ऑल पीपल आर डिफरेंट. सम नोज दिस दैट यू आर बटरिंग. थोड़े से लोग, कुछ लोग होते हैं जो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. They do not want to get into such things, such tactics. If you say someone कि you are looking very good, so they can come up with a straight reply, okay thank you, and the conversation is done. तो अगर कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है. तो दैट्स वाई आई हैव अगेन डेवलप्ड इट, आई हैव अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज the compliment. How to compliment? It may be related to their energy level,
ठीक है, तो इट मे बी रिलेटेड टू द एनर्जी लेवल्स. सपोज दैट वी आर trying to start a conversation with a guy who is very much workaholic and he is very much straightforward. तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि सर आप यू आर लुकिंग गुड या मैम यू आर लुकिंग गुड, तो दैट विल नॉट वर्क देयर. तो व्हाट वी हाउ वी कैन स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट देयर बाय कॉम्प्लीमेंटिंग देयर एनर्जी लेवल्स कि मैम यू आर सो वर्कहॉलिक या यू आर सो प्रिपेयर्ड या आई एम जेलस विद योर वर्किंग एनर्जी लेवल्स. मतलब आपकी जो एनर्जी है सर या मैम जो भी है, आपकी जो एनर्जी है, आप जो यहाँ पे प्रेजेंस है या आपने जो इसमें वर्क लगाया, आपने हार्ड वर्क पुट किया इस चीज़ के लिए, उससे मैं बहुत जेलस हूँ या मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ या आई लाइक योर वर्किंग स्टाइल. तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी के काम की तारीफ करते हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल थैंक्स यू फॉर इट. they feel that okay so you are into their work means you are interested in the work. तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें जेन्युइन हो जाती हैं. तो there also they take interest in you. सेकंड हो गया related to work. उनका जो वर्क है, वो जो भी काम करते हैं, लाइक जो कुछ लोग देख रहे हैं दे आर फ्रॉम MNC. तो MNC में उनके जो काम हो गए लाइक दे आर मैनेजर्स, दे आर क्लरिकल स्टाफ. अगर किसी दूसरे फील्ड में लाइक फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट पोजीशंस हैं या उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उसमें से किसी की बात कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ से आप उठा के बात कर सकते हैं. बट फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू रिसर्च द थिंग्स. आप उसके बारे में पता होगा तभी आप बात कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठाया बोल दिया. ठीक. द थर्ड वन इज रिलेटेड टू देयर ऑरा और अपीयरेंस. ठीक है, उनकी ऑरा से रिगार्डिंग बात कर सकते हैं. ऑरा मीन्स देयर प्रेजेंस या अपीयरेंस उनकी, मतलब बट दिस पॉइंट शुड ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ. ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि व्हेन यू आर मीटिंग टू अ गाय हु इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो आप उससे ये नहीं बोल सकते हो कि सर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम. आप उनसे बोल सकते हो कि सर जो आपकी अपीयरेंस है या जो the presence of here is so powerful that the energy levels of this party has gone up या has warmed up. कि आप जब आए हो, जैसे हम बोलते हैं ना, आपके आने से पार्टी में 4 चांद लग गए. तो this kind of this sort of something will help you to start a conversation. But please refrain from such things that sir you are looking damn hot, damn sexy. Such kind of words are not very much productive. कि हो सकता है कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट ले लें, बट in genuine cases, most of the cases, these kind of words, especially once you are meeting them for the first time, आप बाद में बात कर रहे हो, like once you get frequent with them, with these people, तो these words are fine. But you are starting the first conversation with those people, तो please refrain from such words. ठीक है, तो first point is over. Second point is transition by using reminds me of. This is a very powerful phrase. This is a very powerful technique. कि आपको अगर और कुछ समझ में नहीं आ रही है, स्पेशली जो पीपल किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, स्पेशली जो पीपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दे विल बी वेरी मच रिलेटेड, दे विल रिलेट दिस टर्म इन देयर कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल. दे कैन यूज इट वेरी फ्रीक्वेंट, दे कैन यूज इट इन अ सच अ मैनर कि दैट देयर कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज बी प्रोडक्टिव. तो लाइक अब किसी को अगर अपना कोई बात करनी है, किसी अपना कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है या उसके बॉस से बात करनी है,
तो आप कह सकते हो कि बॉस हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन और सम प्रेजेंटेशन, तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर योर दिस प्रेजेंटेशन या योर कीननेस इन दिस प्रेजेंटेशन रिमाइंड्स मी ऑफ सो एंड सो। आप किसी बड़े आदमी का नाम ले सकते हो या आप किसी अपने ऐसे फैमिलियर का नाम ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कम्युनिकेशन, जो कॉन्वर्सेशन है वो एक डिफरेंट एरिया में चली जाएगी। लाइक इफ यू आर मीटिंग समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, like in a college group, like in a party, and you started the conversation, hi, this is Abhishek, and he says कि I am someone and I works in that sector। तो आप सीधा उसे ट्रांजेक्ट कर सकते हैं उस conversation by saying कि okay, so you work in HDFC Bank, that reminds me of one of my friend, he was very much tempted to for banking sector, he was preparing for banking sector। तो उससे क्या होगा कि उसका भी एक जो इंटरेस्ट है वो उस कॉन्वर्सेशन में जग जाएगा, वो मतलब समझ जाएगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन द वर्क, या यू नो समहाउ हिम और हिज वर्किंग कल्चर, या आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द वर्किंग कल्चर। तो उससे एक नया जो कॉन्वर्सेशन है, एक नई दिशा उस कॉन्वर्सेशन को मिल जाएगी, वेयर यू बोथ विल बी म्यूचुअल। आप जो दोनों लोग हैं वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे को जानते होंगे, या जो जिस ओर आप जा रहे हो, जिस न्यू डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वो आप दोनों से परिचित होगी। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक कि बाय यूजिंग द वर्ड रिमाइंड्स मी ऑफ। आप इसे कैसे भी टर्म्स में ले सकते हैं, आप इसे थर्ड पार्टी की ओर ले जा सकते हैं, आप इससे बॉस की तारीफ कर सकते हैं, आप इससे उस काम की तारीफ कर सकते हैं। वॉट एवर द वे यू वॉन्ट टू यूज इट, यू कैन यूज दिस फ्रेज। ठीक, तो नेक्स्ट वन इज लर्न टू एड वाई वॉट। तो दिस इज again a powerful technique, but this is you need to always be cautious while using this, because this is interrogative words, and interrogation, nobody likes interrogation. So you should always be watchful where you are using these words. Like suppose you are meeting somebody for the very first time and you want to start a conversation with that guy, so how can you start? You do not know much about his job, much about his background and something, but you want to start a conversation, and you started by saying, hi, this is Abhishek Gupta and I hails from Delhi, UP, and like सामने वाला अगर बोल देता है कि okay, I am Rishi and I am from देहरादून, तो आप अभी इसके बाद में क्या है, कॉन्वर्सेशन इज ओवर। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, एंड द कॉन्वर्सेशन इज ओवर, बट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट गाय। आपको कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ानी है, आपको और बात करनी है। तो हाउ कैन यू एड ऑन द वर्ड्स? यू कैन सिंपली एड कि okay, so hi Rishi, that's very good, that's very cool that you are from Rishikesh, you are from Dehradun. I always wondered about Dehradun. Can you please tell me that what allures you in Dehradun? Yeah, why you staying at Dehradun? Why you choose your native place? Why you choose your new home at Dehradun? Why you wanted to work? Why you are working in Dehradun? तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जिससे आप जो है उसके बारे में एक, या आप अपने बारे में, या आप कोई म्यूचुअल रास्ता निकाल सकते हैं कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। आप मतलब आपका भी इंटरेस्ट है देहरादून में, उसका भी इंटरेस्ट है देहरादून में, तो आप एक नई दिशा में जा सकते हो। मतलब एक म्यूचुअल एक आप दिशा निकाल सकते हो जिसपे दोनों लोग एग्री करते हो, एंड द कॉन्वर्सेशन कैन स्टार्ट। आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो स्टार्ट होती जाएगी, और फिर बीच में आप कोई ना कोई और भी आपको ऐसे कोई टॉपिक्स मिलेंगे जिसपे आप दोनों फिर से एग्री कर जाएंगे, या आपकी कॉन्वर्सेशन लंबी हो जाएगी। तो these why and what are a very good words you can use to add on your conversation, but always be cautious. ऐसा नहीं है कि कभी कभी these may sound negative, like why you are living at Dehradun. Always watch your tone, always watch how the way you are asking.
कभी कभी हो सकता है कि आपने बोला कि वाई यू आर लिविंग एट देहरादून एंड इट गेव ए नेगेटिव इम्पैक्ट टू समवन इन फ्रंट ऑफ यू। आपने बोला कि आप क्यों रह रहे हो, सामने वाले को लगा यार ये तो बेइज्जती कर रहा है। तो ऑलवेज वॉच योर टोन, ऑलवेज वॉच योर हम्बलनेस। मतलब ऐसा सामने वाले को नहीं लगना चाहिए दैट यू आर पुटिंग ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सामने वाले को लगना चाहिए यू शुड ऑलवेज सीम जेन्युइन। आपको हमेशा जेन्युइन देखना चाहिए, देन ओनली द कन्वर्सेशन विल गो ऑन। ठीक है, तो दीज थ्री वर द पॉइंट्स एंड बिलीव मी दीज ऑल थ्री आर वेरी पावरफुल टेक्निक्स। आप इन टेक्निक से किसी से भी बात कर सकते हैं एक बहुत ही फ्रेंडली मैनर में, एक बहुत ही प्रोडक्टिव मैनर में। आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, सामने वाले को भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, और एक म्यूचुअल एक अच्छा सा टॉपिक निकल आएगा जिस पे आप दोनों अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आई वुड लाइक टू गिव यू सम bonus tip as well apart from these 3 tips. And what are the bonus tips? Obviously who doesn't want to have some bonus? So these are the bonus tips. Bonus tips number 1 is remember to pass a smile or लाफ। हमेशा जब सामने वाला with whom you want to start a conversation, always pay attention to him, and once you are paying attention you will pass a smile or laugh, but it should be genuine. ऐसा नहीं होना चाहिए हम जबरदस्ती हंस रहे हैं क्योंकि हमें उससे बात मनमानी है या उससे बात करनी है तो हम जबरदस्ती हंस रहे हैं। प्लीज अवॉइड इट, क्योंकि ये क्या होता है, ओवरडू भी हो सकता है। अगर आप जबरदस्ती हंसेंगे तो उसे लगेगा कि नहीं यार ये तो मतलब या तो पागल है या क्या है, इट विल गिव ए नेगेटिव इम्पैक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर टू पास अ स्माइल और लाफ, बट इट शुड बी ऑलवेज जेन्युइन, एंड फॉर जेन्युइननेस यू नीड टू ऑब्जर्व द गाय, यू नीड टू पे अटेंशन टू द गाय व्हाट ही इज सेइंग। ठीक, सेकेंड वन इज mirror technique. What is mirror technique? Mirror technique is that suppose you want to start a conversation, suppose I want to start a conversation with you, so what I'll do when I am listening to you, if you are speaking something I am listening to you, what I'll do as a mirror technique, I will remember the last 2-3 words of your sentence. When you are about to stop your speaking, I will remember those last 2-3 words, and when I start speaking I'll start with those 2-3 words. मतलब जब हमें जिससे बात करनी है और जब वो बात कर रहा है, जब वो अपना खत्म करने वाला है, तो उसके जो खत्म होने वाले वर्ड हैं उसके 2-3 वर्ड्स से मैं सुन लूंगा, और जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बोलना तो मैं उन्हीं 2-3 वर्ड से मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। इससे क्या होगा, इससे इंस्टेंटली आपके और उसके बीच में कनेक्शन फिट होता है। इंस्टेंटली उसे लगता है कि अच्छा ठीक है, इट मीन्स दैट ही वॉज गिविंग अटेंशन टू माई वर्ड्स, तो वो आपके बारे में या जब आप बात कर रहे हो तो आपका अटेंशन देगा, तो समहाउ अ कॉन्वर्सेशन विल बी डेवलपिंग, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, बिकॉज यू बोथ विल बी फीलिंग अ म्यूचुअल कनेक्शन विद ईच अदर। उसे ये लगेगा कि आप उसे जेन्युइनली आप उसे फॉलो कर रहे थे या जेन्युइनली आप उसकी बात समझ रहे थे। बट अगेन प्लीज डोंट ओवरडू इट, इसे ओवरडू ना करें या इसे फेक ज्यादा ना करने की कोशिश करें। प्लीज बी स्मार्ट विद ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, चलिए एक बोनस टिप हो गई, एक आपको एक मजबूत सी बोनस टिप और देता हूं, दैट विल बी प्रो बोनस टिप। Always remember avoid religion, politics. In your first conversation, try to avoid the religion and politics talk until unless it is very much necessary. If you are from political background, obviously you will talk political, but if it is not political, please avoid religion or politics, because
in India or wherever you go, generally these both the things are very much emotional kind of things. People are attached, and in the first talk you cannot question their attachment, their emotions. So please refrain using such topics, religion and politics. If you want to have a good conversation, if you want to have a productive, constructive conversation, please avoid these things, and remember to use those 3 points plus 2 bonus tips. It will surely help you. It will help you start a conversation for sure. These are proven techniques, and इससे आपका आप जितना बात करेंगे आपका इंग्लिश में भी सुधार होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल में भी सुधार होगा, और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा. तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक, थम्स अप, click the bell icon and subscribe. Those people who have still not subscribed my channel, please do subscribe it. Thank you, and please make some comments if you liked it, didn't like it, like the content or didn't like the content. Please make a comment and please subscribe it. Thank you.